السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل رات جو تقریباً 12 بجے کے دوران 12 بجے کے بعد تک ضلع سانگڑ تحصیل جام نوازلی بیرانی شہر میں مین روڈ پہ گلی میں جو میرا گھر ہے جو فائرنگ ہوئی، آدھے گھنٹے سے زیادہ فائرنگ ہوتی رہی۔ فائرنگ کرنے والوں کی تعداد پہلے 7-8 تھی، بعد میں 20 سے زیادہ۔ تو میں نے کل ویڈیو بنائی فائرنگ کے دوران۔ واقعہ اس طریقے سے کافی بھائی لکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، بڑی مہربانی جو بھائی ساتھ دے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ تو 100 میں سے 20% بتانے کی کوشش کروں گا، 100% بتانے کی میرے میں طاقت نہیں ہے۔ جس کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے نا، اس کیفیت میں وہی ہوتا ہے، دوسرا بندہ وہ اپنی سوچ کے مطابق بات کرتا ہے۔ بات یہ ہے جی، یہ قصہ جو ہے نا پرانا ہے، تقریباً 4 سال 5-6 سال سے پرانا، جو ہم بھگت رہے ہیں، میرا خاندان بھگت رہا ہے، اور بے گناہ۔ کل میں جو اس چارپائی پہ بیٹھا ہوں، اسی جگہ پڑا تھا، شور ہوا، فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ جیسے ہوتی ہے، بھاگا بھاگا میرا بیٹا آتا ہے، بولا جی فائرنگ کی، اور وہ پیچھے آ رہے فائر کرتے ہوئے۔ تو گلی ہے، گلی پہ ادھر فائر کیے، اور فائر کرتے ہوئے ادھر آئے۔ پھر میں بھاگا، موبائل میں نے ادھر ہی چھوڑ دیا، ادھر پڑا تھا۔ گھر میں کرام مچ گیا، شور شرابہ۔ باہر گلی میں گیا، ہجوم تھا، پولیس کی موبائل کھڑی تھی گلی میں۔ میں نے پولیس والوں کو بولا کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، تو آپ ادھر ہی کھڑے رہو۔ پولیس کی موبائل 2 منٹ میں واپس چلی گئی۔ جیسے پولیس کی موبائل چلی گئی، پھر گلی کے دونوں طرف سے فائرنگ ہونا شروع ہو گئی۔ تو میں نے اپنے گھر سے موبائل منگایا، اور موبائل منگوا کے میں نے ویڈیو بنائی۔ اس سے پہلے بہت فائر ہو چکے تھے۔ آپ سب بھائیوں نے دیکھا کہ 2-3 گولیاں تو میرے سر کے اوپر سے نکل کے گئی ہیں۔ ابھی کس نے فائرنگ کی، کون ہے فائرنگ کرنے والے، میں نے نہیں بتایا، کیونکہ میں کھول کے تمام باتیں بتاؤں گا، میرے بچوں کا، میرے فرد گھر کے خاندان کا جو جینا مشکل ہے، وہ اور جینا مشکل ہو جائے گا۔ رہی بات، کافی لوگ بول رہے ہیں چوڑیاں پہن لو، بزدل ہو، پتہ نہیں کیا کچھ بول رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ٹنڈو آدم سے بیرانی آنا میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے مشکل ہے، اور بیرانی سے ٹنڈو آدم جانا مشکل ہے۔ ٹنڈو آدم سے بیرانی 14-15 کلومیٹر ہے۔ ابھی یہ میرا شہر ہے بیرانی، یہاں سے ٹنڈو آدم 14 کلومیٹر۔ گھر سے روڈ پہ جانا مشکل ہے، روڈ سے شہر میں جانا مشکل ہے، کہ بھی کب حملہ ہو جائے۔ تو یہ طاقتور لوگ ہیں، نہ یہ پولیس سے ڈرتے ہیں، نہ ایس ایچ او سے ڈرتے ہیں، نہ ایس پی سے ڈرتے ہیں، نہ عدالتوں سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ گروپ ہے منشیات فروشوں کا،
جنہوں نے میرا اور میرے خاندان کا جینا مشکل کر رکھا ہے۔ رک جا بابو۔ ڈر، خوف، اذیت، ذلالت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ آپ میرا چہرہ غور سے دیکھ سکتے ہو کہ 2 سال پہلے کیسا تھا اور ابھی کیسا ہوں۔ کمزور ہو گیا ہوں۔ خوف اور ڈر جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ اور میں نے کبھی بھی تعصب، لسانیت یا کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، نہ میں کروں گا۔ میں نے ہمیشہ پاکستان کا، پاکستان آرمی کا، محب وطن لوگوں کا دفاع کیا۔ تو میرے ساتھ جو واقعہ ہے، ہمارے لیے نو گو ایریا بنا ہوا ہے۔ میرے بیٹوں پہ فائرنگ ہوتی ہے 1.5 سال پہلے، میرے تائے کے لڑکے پہ حملہ ہوتا ہے، میرے خاندان کے کسی نہ کسی فرد کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے۔ ابھی میں کھول کے بتاؤں تو اور ہمارے ساتھ فلم ہے۔ SHO برانی صاحب، SSP سانگڑ صاحب، وہ انکوائری کرے کہ جو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ کر رہے ہیں، کیا ان کے اوپر FIR داخل نہیں ہے مختلف تھانوں میں اور برانی کے تھانوں میں؟ کیا وہ منشیات فروش نہیں ہے؟ اگر ان کے دل میں ڈر اور خوف ہو، کیا اس طریقے سے فائرنگ کریں، اس طریقے سے ہراساں کریں؟ تو ہم خوف کی زندگی گزار رہے ہیں، ڈر کی زندگی۔ ایک بندہ مالی طور پہ کمزور ہو، اس کی جیب میں کرایہ نہ ہو، اور وہ بیمار ہے تو دوائیوں کے پیسے نہ ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے بھائیوں، یہ پوری فائل ہے میری دوائیوں کی، انجیوگرافی کی کیسٹ ہے اس میں، میرے دل کے 2 یہ دوائیاں ہیں میری، یہ دیکھ سکتے ہو۔ ادھر نہیں تو کوئی اور بھی دیکھ سکتا ہے، ڈاکٹر میرا کو چیک کر سکتا ہے۔ دل کے میرے 2 وال بند ہیں، جگر کا مسئلہ ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر کا یہ حال ہے کہ اوپر والا 80 اور نیچے والا 40 ہو جاتا ہے۔ گرمی زیادہ ہو تو دل گھبراتا ہے، اور کسی کا دوسرے کا بھی پھڈا ہو جائے نا تو میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی بھی یہ چھاتی ہے نا، اس پہ درد ہے، چل نہیں سکتا۔ جو بندہ خوشحال ہے نا، بیمار ہے، اس کے ساتھ بھی پریشانی ہوتی ہے، اور ایک وہ بندہ بیمار اور جیب میں پیسے نہ ہو، اس کا تو اور بھی حال خراب ہوگا۔ رانا رمضان نہ کبھی بزدل تھا نہ بزدل ہے۔ اگر میں روتا ہوں تو ایک دم میرا دل بھر کے آتا ہے۔ میں پیدائشی طور پہ نرم دل کا انسان ہوں۔ یہ جو بلی یا جانور یا دکھ میں ہوتے ہیں تو میں تو ان کو دیکھ کے روتا ہوں۔ میرا اپنا دکھ ہوتا ہے نا، میرے کو سبکی آتی ہے، میری چھاتی بھر کے آتی ہے۔ تو یہ میری کمزوری نہیں ہے۔ اگر میں بزدل ہوتا تو فائرنگ کے دوران میں ویڈیو نہیں بناتا۔ اگر میں کھول کے دلیری سے باتیں بتاؤں کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، تو میں پھر پھنسوں گا، میرا خاندان ہے میرے ساتھ۔ تو میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ میرا خاندان خوف کی زندگی گزار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑا سوچو، آپ پاکستان کے کسی بھی ضلع میں، شہر میں، گاؤں دیہات میں رہتے ہو، اگر آپ اپنے گھر سے دوسرے گاؤں، دوسرے شہر جاتے ہو اور ڈر ہو کہ رستے میں حملہ ہو جائے، کیونکہ میرے پاس تو بھائی نہ کار ہے نہ گاڑی ہے، میں تو پیدل ہوں، کبھی چنچی میں اور کبھی پیدل، کبھی بس میں۔ تو خوف ہے مجھے اور میرے بچوں کو،
सबूत हमले होते हैं बार बार। जिस शहर से मेरा ताल्लुक है, इधर शहर के लोगों को पता है कि ये मसला कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कौन हमारे साथ कर रहा है। तो नो गो एरिया बना हुआ है हमारे लिए। ये मेरा घर है, इसको बेचने की कोशिश की, ये बिक नहीं रहा है। अगर मेरा घर बिक जाए, मैं दिल से बताऊं, मेरी पूरी कोशिश है, मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोला, मेरी 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, मैं पंजाब जाके बस जाऊं। जाहिर बात है पैसा नहीं है, बंदा जाए तो उधर अपना घर खरीदे, अपना नहीं है तो किराए के तो पैसे तो हों। फिर क्या होता है, मेरे को अटैक हो जाता है इसी परेशानियों की वजह से। और अटैक जो हुआ तो ये वाल बंद है, एक बंदा बीमार है, 2 वाल बंद हैं, और यही खौफ सुबह शाम कभी फड्डा हो जाए, लड़ाई हो जाए। मैं और बात बताता हूँ, सर्दियों में जिन्होंने कल फायरिंग की, जुल्म ये है कि यानी जिस इलाके में ये मसला होता है, इलाके में लोग देखते हैं, लोग इतने डरे हुए हैं कि वो गवाही भी नहीं देते। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं पता नहीं कैसे अपना काम चला रहा हूँ। वालिद साहब भी बीमार हैं, मैं भी बीमार हूँ। ये मैं बातें कोई जानबूझ के नहीं बताता बार बार। अभी सर्दियों में ये सर्दी गई है, मैं रोड पे रोटी लेने गया था, 4-5 लड़के मेरे को रोड पे इतनी गालियां दी माँ बहनों की कि उनकी गालियां सुनकर मैंने कुछ नहीं बोला। एक बंदा दिल का मरीज है और उसको गालियां दी जा रही हैं, ब्लड प्रेशर जिसका गिरता है तो उसकी कैफियत क्या होगी, मेडिकल डॉक्टर बता सकता है, या इस मर्ज में जो मुब्तला है वो बता सकता है। कभी मुझे गालियां, कभी मेरे बेटों को, कभी भाइयों को, कभी फायरिंग, हर 15-20 दिन के बाद। और ये जो कर रहे हैं, ये 15-20 बंदे हैं। क्या इलाके के SHO अभी है या इससे पहले था, क्या उनको नहीं पता है? क्या शहर के लोगों को नहीं पता है? मुंशियात फरोश लोग, उन्होंने जीना मुश्किल कर रखा है। अगर पुलिस का डर हो, अदालतों का डर हो, खौफ हो, तो वो ऐसी बदमाशी करें। और ये बदमाशी सिर्फ मेरे साथ नहीं है, जिन लोगों के साथ है वो बताते हुए भी डरते हैं। तो ये पूरा माहौल खराब है। हमने हमेशा पाकिस्तान का दिफा किया है, पाकिस्तान आर्मी का दिफा किया है। जैसे बलूचिस्तान में मार मार के भगा दिया है, सिंध के अंदर भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान का दिफा करना, आर्मी का दिफा करना, मोब वतन लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इंसाफ नहीं है। जो बदमाशी कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे आप देख सकते हो, कराची से लेके गोटकी तक इस बदमाशी कल्चर से हर कोई तंग है। गरीब मासूम सिंधी भी तंग हैं, बलोच भी तंग हैं, पंजाबी, पश्तो, उर्दू, कच्छी, गुजराती, मारवाड़ी, हरियाणवी, हर जुबान, हर बिरादरी का बंदा तंग है। ये कोई लसानी दहशतगर्दी नहीं, बस जो ताकत में है वो बदमाशी कर रहा है। जराइम पेशा लोग। मेरे में कोई ताकत नहीं है लड़ने की।
मैं कैसे लड़ सकता हूँ? अदालतों में पैसा चाहिए, आना है जाना है। तो ये एक बदमाशी है, सिर्फ मेरे साथ नहीं। जिला दादू मेड़ में डॉक्टर सफदर रांगड़ राजपूत, उसके घर पे डाका पड़ता है, लूटमारी होती है, वो दरखास्तें देता है, कोई इंसाफ नहीं होता और वो मुजरिम उसको मार देते हैं। दूसरे दिन पेज पे लिखते हैं कि ये पंजाबी था, हमने कत्ल किया, सिंध खाली करो। ऐसे कई सौ लोगों को मार दिया गया है। जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत सब अल्लाह के इख्तियार में। कल ये मेरे घर के ऊपर हमला हुआ, मेरी गली में 3 गोलियां मेरे सर से गुजरी, बेटों के, अल्लाह ने बचाया। वो हमें मार चुके हैं। ये कातलाना हमला, ये क्या है? क्या ये बदमाशी नहीं? किसी शादी में, बारात में पटाखे बजते हैं तो पुलिस फौरन पहुंच जाती है, और यहाँ आधे आधे घंटे 20 से 25 बंदे जदीद हथियारों के साथ फायरिंग करते हैं। उनको पुलिस का डर ही नहीं है, पुलिस उनको कुछ बोलती नहीं है। यानी मनशियात फरोश लोग, जराइम पेशा लोग मुकम्मल दहशतगर्दी कर रहे हैं हर इलाके में। उस दहशतगर्दी का निशाना सब है। तो ये मैं और मेरा खानदान इस दहशतगर्दी का निशाना है। और मैं हाथ जोड़ के अस्करी क़यादत, अस्करी इदारों से, कोर कमांडर सिंध साहिब से, डीजी रेंजर सिंध साहिब से, डीजी MI, डीजी ISI साहिब से, चीफ आर्मी स्टाफ साहिब से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, खुदा रसूल के वास्ते, सिंध में ये गुंडागर्दी, दहशतगर्दी ख़त्म कराई जाए। हर ज़ुबान, हर बिरादरी का जो मज़लूम है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। ये जराइम करने वाले, ना इनको अदालतों से डर लगता है, ना पुलिस इंतज़ामिया, SHO, DSP, SP से डर लगता है। इसलिए ये खुली बदमाशी है। आप सोशल मीडिया पे, अखबार में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख सकते हो। रोज़ाना की बुनियाद पे हर इलाके में कहीं ना कहीं लूटमारी, फायरिंग, कत्लेआम, ये बदमाशी का सिलसिला जारी है। मुझे या मेरे बेटे को मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, तो मैंने पूरी लिस्ट तैयार करके रख दी है कि मेरे या मेरे बच्चों का कातिल कौन होगा। रही बात कल जब फायरिंग हुई, जो मुसलसल हरासा किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, और एक बीमार आदमी है, और मुझे कुछ हो जाए तो इतने पैसे नहीं है कि मेरे बेटे या कोई मुझे टंडो आदम अस्पताल में ले जाएं या हैदराबाद, क्योंकि ना तो कार का किराया है और ना जनाब उधर जाऊं तो इलाज करने के पैसे हैं। मैं हकीकत बता रहा हूं। और इसी सूरत हाल में ये डर और खौफ, बाजार में सब्जी खरीदनी है, मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते, छोटा मोटा कारोबार नहीं कर सकते, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, खौफ 24 घंटे। अल्लाह बचाए इस परेशानी से हर इंसान को। जो मैं परेशानी ये भुगत रहा हूँ, और मेरे जैसी परेशानी लाखों लोग भुगत रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, मैं ना बुज़दिल हूँ, ना मुनाफिक हूँ, ना मुझे किसी से नफरत है। हर
15-20 दिन 2 महीने के बाद ये वाक़या होता है, कराम मिचता है। जो बदमाशी की जाती है उनको डर ही नहीं है। अगर हम मज़ामत करें, बंदूक का जवाब बंदूक से दें, डंडे का जवाब डंडे से दें, तो इंतज़ामिया तो फ़ौरन हमारे ख़िलाफ़ हरकत में आ जाती है। लेकिन जो कर रहे हैं उनको कोई डर नहीं है, उनको कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये हक़ाइक़ है, और ये भी मैं 100 में से 20% बता रहा हूँ, 80% मैं नहीं बता सकता कि जो जुल्म और सितम का बाजार गर्म है। अभी लोग पूछते हैं भाई तुम्हारा मसला क्या है, हर बंदा अपनी अदालत लगाता है। फ़ोन किए काफ़ी भाइयों ने, पूछते हैं भाई हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे तो गले पड़े हुए हैं। शहर में लोगों को पता है, शहर से हट के गांव देहातों में लोगों को पता है। जो शरीफ ईमानदार पुलिस अफसरान हैं उनको पता है कि जो मुझे मेरे घर वालों को तंग कर रहे हैं, क्या वो मंशियात फरोश नहीं है? क्या उनके ऊपर इस थाने में बिरानी के या और थानों में एफआईआरें कटी हुई नहीं है? जो सरेआम गालियां देते हैं, रोड पे आते हैं और गालियां देते हैं और फायरिंग करते हैं हर 20 दिन के बाद, माँओं की, बहनों की, तो ये बदमाशी है मेरे भाइयों। और ये कोई आम लोग नहीं है, ताकतवर लोग हैं जिनको पुलिस का डर नहीं है। सबसे बड़ा सबूत, कल फायरिंग की, इससे पहले फायरिंग की, तंग करते हैं। भाई क्यों नहीं पुलिस रोकती उनको, क्यों नहीं उनको पकड़ती? तो ये बातें मैंने थोड़ी सी बताने के लिए ये लाइव आया हूँ। बाकी रोने की बात, दुख जब होता है ना, फ़लस्तीन में जो मुसलमानों के साथ जुल्म है, या इंडिया में या कश्मीर में मुसलमानों के साथ जुल्म है, या किसी भी इलाके में मुस्लिम या गैर मुस्लिम जिसके साथ जुल्म होता है ना मेरे भाई, बार बार जुल्म होता है, जो खौफ और अजियत में होता है, उसको रोना भी आता है। इंसान का दिल जो है ना वो नरम है, इंसान इतना मजबूत नहीं है। होंगे मजबूत भाई, मैं तो इतना मजबूत नहीं हूँ, मेरा दिल तो है कमज़ोर। और मजबूत भी मैं कब तक करूँ? तो रोना धोना दिल भर के आता है, बार बार परेशानी और अजियत की ज़िंदगी गुजारने पर जो मजबूर है उसका दिल भी भर के आता है। और जो जुल्म है उसके साथ, और खोल के बता भी नहीं सकता कि किस किस तरीके से जुल्म है। एक बंदा खोल के बता दे, भड़ास निकाल ले, लेकिन और गले में फिल्म पड़ेगी। तो ये बदमाशी का मैं एक निशाना नहीं हूँ, पता नहीं कौन कौन है। और जो मेरे साथ ये बार बार जुल्म कर रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, मुझे इतना तंग ना करो। मेरी आपसे, आपकी बिरादरी से, आपका ताल्लुक जिस पार्टी से, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। किसी को इतना तंग ना करो। पाकिस्तान के अंदर ये वाक़े सुस्त तरीके से, ख़ास तौर सिंध में जो बदमाशी है, लेकिन इतना भी अंधेर नहीं है। हमारी बिरादरी राजपूत या गैर राजपूत पूरे पाकिस्तान में हर जगह हैं, अस्करी इदारों में भी हैं,
مختلف پارٹیوں میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں، لیکن میں یہ لڑائی لڑنا نہیں چاہتا۔ میں نے دوگلا پن، دور معیار کا کبھی بھی مظاہرہ نہیں کیا۔ آپ برا کرو اچھا کرو، میں نے کبھی بھی آپ لوگوں کے خلاف، میں ان کو بول رہا ہوں جو میرے یا میرے خاندان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں نے کبھی بھی، میں حلفیہ قسماً بتانے کے لیے تیار ہوں، آپ اچھا کر رہے ہو برا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو، لوگ اچھا سمجھیں نہیں سمجھیں، میں نے کبھی مداخلت نہیں کی کہ بھئی آپ بدماشی کر رہے ہو، آپ جرائم کر رہے ہو، آپ منشیات فروشی کا کام کر رہے ہو، میں نے کبھی بھی چغلیاں نہیں کی۔ لیکن مجھے جو تنگ کر رہے ہو تو آج میں نے مجبوری میں نام بھی نہیں لے رہا ہوں کسی کا، مجبوری میں بتا رہا ہوں کہ یہ چند لوگ ہیں منشیات فروش، جرائم پیشہ، اور میں کسی برادری کے خلاف نہیں ہوں، کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہوں، ایک عام غریب انسان ہوں، مجھے اتنا تنگ نہ کرو۔ میرے گھر والوں کی زندگی عذاب بنا رکھی ہے، بہت عذاب بنا رکھی ہے، 24 گھنٹے کا ڈر اور خوف۔ بلی ہوتی ہے نا، اس کو کمرے میں بند کر کے مارو تو بلی بھی گلے پہ آتی ہے، جانور کو کوئی مارے نا تو جانور بھی چاؤں چاؤں کرتا ہے، یار ہم تو انسان ہیں، اور اتنی کمزور برادری بھی نہیں ہے ہماری۔ مانتے ہیں اس شہر میں لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے بول نہیں رہے، لیکن اس سے ہٹ کے بھی پورا پاکستان ہے۔ مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میری بیوی، میری بیٹی، میرے بیٹے، میرے بیٹے کی بیوی، اس کے بچے، یا تو میں یہاں سے پنجاب چلا جاؤں گا، چلو میں گھر نہیں خرید پا رہا ہوں، میں ایمرجنسی بنیاد پہ چلا جاؤں گا اس شہر کو چھوڑ کے۔ اور میں نے بار بار بولا، میری بیوی نہیں مان رہی، جاؤں گا تو میں پنجاب جاؤں گا۔ اور لائف کے تھرو میں بتانا چاہتا ہوں، نہ میں نے اب تک ایس ایچ او کو درخواست دی ہے، نہ ایس پی کو درخواست دی ہے، یعنی ایس ایچ او صاحب کو اور ایس پی صاحب کو، نہ آئی جی صاحب کو دی ہے، نہ ابھی دی ہے نہ اس سے پہلے دی تھی۔ بھائی کیوں نہیں دی ہے؟ مجھے پتا ہے عملی نہیں ہوگا، نہ میں لڑائی لڑنا چاہتا ہوں، صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جرائم پیشہ لوگ آج مجھے تنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، تو یہ معاشرے کے لیے اچھی بات نہیں ہے، سماج کے لیے، سندھ کی عوام کے لیے، حلقے کی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے کہ جرائم پیشہ لوگ بدماشی کریں، جینا مشکل کریں، اور انتظامیہ بے بس ہو۔ میں غریب آدمی کہاں لڑوں گا؟ چلو کسی نے ویڈیو بنا دی، میرے حق میں کمنٹس کر دیے، یہی صورتحال ہے نا، پھر میں کھول کے بات کرتا ہوں تو لوگ دوسرا رنگ دیتے ہیں۔ ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں، پھر کہتے ہیں کہ تو رو پڑا، تو نے یہ بات کر دی، کچی بات کر دی، راجپوتوں کی بےزتی کرا دی۔ بھائی میرے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، میں بھگت رہا ہوں نا، میرے بچے بھگت رہے ہیں نا۔ جو بندہ دوائیوں کے پیسوں سے محتاج ہو، اس سے پہلے یہ فڈا ہوا، میں نے پتہ نہیں کیسے
किस तरीके से हाथ जोड़ के जान छुड़ाई, फैसला हो गया, सारी चीज होगी, फिर बार बार तंग किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरे साथ जो हाल है ना, वो मुझे पता है। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं तो ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन इस शहर में किसी भी जुबान बिरादरी के हों, बलोच भाई हों, सिंधी भाई हों, जो महाजर कहलाते हैं या नहीं कहलाते हैं वो भाई हों, क्या मेरे जाने से ये बदमाशी रुक जाएगी? देखो, मैं चाहूं तो आज आफाक अहमद की तरफ से राब्ता किया गया मेरे से, मैंने मना कर दिया। MQM पाकिस्तान की तरफ से राब्ता किया गया, मैंने मना कर दिया। मैं अपनी बीवी को, बच्चों को ले जाऊं आफाक अहमद के बराबर में बैठ के करा दूं प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुस्तफ़ा कमाल साहब या खालिद मकबूल सदीकी साहब उसके पास बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दूं, लेकिन वो लसानी रंग में देना नहीं चाहता, क्योंकि इस जराइम, इस बदमाशी से तंग सब हैं। सिंधी भी तंग हैं और बलोच भी तंग हैं। मैं सिर्फ अस्करी क़यादत, अस्करी इदारों तक अपीलें, दरख्वास्तें पहुंचा रहा हूं कि वो राणा रमज़ान जिसने दिफा पाकिस्तान पर, पाकिस्तान का दिफा किया, आर्मी का दिफा किया, पाकिस्तान दुश्मन मुमालिक उनके एजेंटों को ललकारा, आज उस पर ज़मीन तंग है। आज उसके घर, उसके बच्चों पर ज़मीन तंग है, उसको हरासा किया जा रहा है। तो मैं अस्करी जो क़यादत है उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। किसी हद तक मुझे उम्मीद भी है। बकाया मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्तें देना, आगे पीछे आना जाना न मैं करना चाहता हूं, न मेरे अंदर ताकत है, क्योंकि ये आम बंदे नहीं है, ये एक ताकतवर सिस्टम है। मैं किस किस से लड़ूं? मैंने फैसला किया है। हालांकि मैंने अभी बोला कि मैं चाहूं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, सारी चीजें करूं, लेकिन मैं इसको लसानी रंग भी नहीं देना चाहता। मैंने सिर्फ ये फैसला किया है 10 दिन में, 15 दिन में मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा, और इसमें कोई बुज़दिली नहीं है। राणा रमज़ान का किरदार बचपन से लेके अब तक इस शहर के लोग जानते हैं। इंसान है, कमी कुताई सब में होंगी, खिदमत भी की है, करोड़ों के काम किए, उन इलाकों में भी काम किए, उन लोगों के भी काम किए जो मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे कि राणा रमज़ान लसानी नहीं है। मैंने मुहाजिर और गैर मुहाजिर सबकी खिदमत की है और सबके इलाकों में काम कराए। गिरड स्टेशन हो, टंडो आदम से लेके बिरानी जामगोट तक, फीडर हो, पोल, ट्रांसफार्म, खंबे, और भी काफ़ी वैसे मसले मसाइल हैं, हमने सबकी खिदमत की है। यहाँ तक कि मैं सुबह भूखा उठा हूँ, किसी को खून की ज़रूरत है तो मैंने ज़िंदगी में ये बताने की बातें नहीं है, मैंने ज़िंदगी में 8-10 दफ़ा खून दिया है, और 5 दफ़ा जब खून दिया मैं भूखा उठा हूँ तो मेरे पास रोटी नहीं थी खाने, नाश्ता नहीं था खाने के लिए, पैसे नहीं थे, भूखे पेट मैंने खून दिया। जो हाल है हमने खिदमत की है। कमज़ोर इसलिए हो गया हूँ कि मेरे दिल के हैं 2 वाल बंद,
शुगर है, जिगर का मसला है, गुर्बत है। गुर्बत तो पहले भी थी लेकिन बीमारी है, ऊपर से ये फड्डा है। तो मैं इसलिए रोता हूँ मेरे भाई। फिलहाल मैं 10 दिन में 20 दिन में ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा, और मेरे से जो गलती हुई होगी, जिन भाइयों को मैं बुरा लगता हूँगा, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। उनसे माफ़ी नहीं जो मुझे तंग कर रहे हैं और लोग। बाकी ये शहर मैंने पहले भी बोला था लेकिन घर वाले नहीं माने। अभी घर वालों को मैं बोल रहा हूँ, देखो मेरे 2 बेटे हैं, अगर मेरे बेटों को कोई मार दे या मुझे मार दे या हमारे गुस्से में किसी को नुकसान हो जाए, तबाही दोनों तरफ है। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा खानदान है। मेरा वालिद साहब जिसकी 95 साल उम्र है, वो बीमार है, उसका मैं तरीके से इलाज नहीं करा पा रहा हूँ। गुर्बत की वजह से अपना इलाज नहीं करा पा रहा हूँ। तो भाइयों, मैं इसमें कोई बुज़दिली की बात नहीं है, मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, तमाम ज़ुबान बिरादरी के पाकिस्तानी, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब जिंदाबाद। जराइम करने वाले की कोई बिरादरी नहीं होती, जराइम करने वाला ही होता है। किसी 1 या 10 फर्द को उसकी बिरादरी से न जोड़े। अच्छे बुरे हर ज़ुबान, हर बिरादरी, हर जगह, हर पार्टी में होते हैं। बाकी मेरे साथ, मेरे ख़ानदान के साथ ये जुल्म है, ये जुल्म सबके साथ है। कोई बर्दाश्त कर लेता है, कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा। मैं खोल खोल के बता भी सकता हूँ, लेकिन कहते हैं कि इतना सच ना बोलो कि जीना ही मुश्किल हो जाए। ज़्यादा सच बोलना भी कोई अच्छी बात नहीं है। सीने में बहुत राज है। जो क्राइम मंशियात फरोश माफिया की तरफ से मेरे और मेरे ख़ानदान पर जो धरती तंग कर रखी है, और लोगों के साथ भी कर रखी है, मेरे साथ नहीं। और ये हाल सिर्फ इस इलाके में नहीं है, पूरे सिंध में। मोबे वतन शरीफ लोगों का जीना मुश्किल है। तो बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बार बार बोलना भी मुनासिब नहीं है। तो ये शहर जो है 20 दिन में 10 दिन में हम छोड़ के चले जाएंगे। हमारे अंदर ताकत नहीं है भाई। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे तमाम भाइयों को। क्योंकि डर और खौफ की जो ज़िंदगी है हम गुजार रहे हैं, मैं गुजार रहा हूँ, मेरे बच्चे गुजार रहे हैं। और हिजरत तो भाई सब ने की है, और ये हिजरत करनी हमारे नसीब में है। बहुत कोशिश की कि ये शहर ना छोड़ें, लेकिन अभी हमारा जीना मुश्किल हो गया। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे भाइयों को।